I am very thankful to my colleagues who have raised valuable points on the subject. Some of the discussions they have told the election of the governors will create two power centers in the state, and they also told it will disrupt the entire administrative structure of the state government. I would like to invite their attention to the election of the President of the Union of India. Has it created any parallel power structure in the Union? Sir, so the election in itself is not a reason for the emergence of parallel power structure. A lot of discussions raised this issue. In our Constituent Assembly, Ambedkar has opined that the election of the governor will not lead to a rivalry between the elected head of the state and the governor. It mentioned by Ambedkar. Sir, look in the states, even the elected chief ministers are not getting the power because of the nominated governors. Sir, hence I believe the argument that the election of governor is leading to parallel power structure in the state is not very valid. Sir, we should not forget that India has an elected head of the state, our honorable president. The question is whether the governor is ready to protect the interest of the state. If he or she is not ready, then we will witness the clash between the state and the governor. We have a lot of experience. In Gujarat, 2011, then the governor Kamala Beniwal. Please, no comment on any governor. For that, there are other provisions and rules. So be specific on the principles and theory of this, Okay, sir. Okay, please, sir. no comment on any governor will go in the record. I am mentioning the incidents, what was happened in Gujarat. Okay, because of your advice, no. I will not. So there, what has happened, the governor appointed Lokayukta judge. Then the chief minister of the state, chief minister of Gujarat. Please, governor, you do not. No, I am not mentioning the name. Yes. Even incident. Yeah, incident. Yes, no mention. No mention about the conduct or anything about a governor. There the chief minister has wrote a letter to the prime minister. He appealed to the prime minister to remove the governor from the post. And also, he wrote that it is a violation of the federal structure of the nation. Sir, the governor tried to appoint Gujarat chief minister. Please, it will not go in record. The governor किसी भी गवर्नर के बारे में किसी इंसिडेंट का अगर आप उल्लेख करना चाहते हैं, सब्सटेंसिव मोशन चाहिए उसके लिए. इसलिए प्लीज आपने जो बिल दिया है उसके औचित्य पर आप बोलें, उसके पक्ष में बोलें, उसके जो भी रीजंस हो बताएं, पर नो इंसिडेंट ऑफ एनीथिंग, एनी गवर्नर और एनी कंडक्ट. प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड. So, sir, similar developments we could observe in various states. Kindly look at the issues in Tamil Nadu. There, the state government, they openly requested to remove the governor from the post. The state government has requested. Then, there, the clash between the governor and the state government was happened. Lot of incidents was there inside the parliament. Also, the members of the parliament has raised lot of issues inside the parliament. But they have requested the president of the nation their own request regarding the removal of the governor. The Tamil Nadu government has registered their position on NEP in various forums. They have strongly opposed the centralization and communalization of education by the union government. But the governor of the state publicly supported NEP.
And he had given the instruction to the universities for the implementation of NEP. How the governor could give the instruction to the universities against the interest of the state, this is a valid, very valid question. Is it a mark of respect to the great federal structure of our nation? NEET is another issue in Tamil Nadu. The people of the state have strongly opposed NEP. The spirit of the people was upheld by the assembly and they have passed a resolution against NEET. The governor, the members from Tamil Nadu is here. The governor had publicly appointed against. Please. Point of order 238(5). A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. Please, no. It is about the conduct of persons in high authority. Yes, I have already mentioned it. It is not so going on record. It should be Please removed. confine yourself to, please. Please. Subhendu. That nothing can be done, mentioned in regard to governor unless there is a substantive motion. Right. The rule is very clear. But here the honorable member is mentioning about the institution of governor in general, not against a particular governor. That is the thing. He is mentioning incidents of particular governors. That will not go on record. that should be- Please, it will not go on record. Incident of any governor you are mentioning, it will not go on record. Again, I am telling you, please, confine yourself to the subject only. Please. John Brittus. Sir, thank you. You are on? Yes, sir. Point of order? Yes, sir. Which rule? 258, sir. 258. Sir, since One minute. the bill Let me is see, 258. primarily on governor, he has to respond to the activities of governor. It's not under 258, without please. naming. Dr. V. Sivasan, It is his please. authority, sir. Please. Okay. Sir, the institution of the governor, we have facing lot of issues from the office of the governors. The states, the members from the state, Rajya Sabha, the council of the states, I think the members of this council have a lot of experience related to this, the governor's office. There, in Tamil Nadu, lot of issues are there. Again, I'm not talk mentioning- about the principles, not about any governor. sir, It will I'm not go on record, sir. Yes, I am not mentioning the governor name of the state. Any state. Yeah. Yes, okay. please. I am following the rules. There, here, see the issues of the NEET everywhere in the state government has raised a lot of issues. But what was the position of the governors in various states? That also need to discuss, need to address. Otherwise, the institution, this is a parliament. So here we should discuss in our Constitution Assembly. It was discussed very thoroughly. So there, Ambedkar has replied in very clear manner. Sir, incidents in Pondicherry. Again, No, you I are am not mentioning. mentioning. Please. I am not mentioning the name of the governor. Even states, Only- it indicates that, you know. Sir. It will not go on record. Sir, if we are discussing the issue of the office of the governor or the functioning of the legislative assembly, we should mention. उसके लिए नियम है, sir. follow that Okay, rule. sir, I am following the rule. No, not So, here. I am- उसके लिए अलग आप सब्सटेंसिव मोशन लाइए, माननीय चेयरमैन एक्सेप्ट करेंगे, तब उस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सर। अगर अभी करेंगे तो कोई चीज रिकॉर्ड पर किसी गवर्नर का आपने नाम है, दिया, सर। किसी स्टेट ठीक का, है, सर। किसी इंसिडेंट का, दैट विल ठीक है, नॉट सर, गो ऑन रिकॉर्ड। ठीक है सर, आई एम नॉट मेंशनिंग सर, आई एम नॉट मेंशनिंग। Please. देश के अंदर अलग अलग स्टेट है, इसलिए नाम आई एम मेंशनिंग, स्टेट का नाम आई एम मेंशनिंग। इन बंगाल हम सब पता है, बंगाल के the incidents in Bengal. It is not going on record, sir. Yes, no, Not going on record. Sir, I am not mentioning the name, I am not mentioning the governor office, but only Please.
I am using the name of the state. In Bengal, how can we avoid the name of Bengal, delete the name of Bengal? You bring substantive motion on that. Yes, sir. Then you discuss, otherwise it will not go on record, even the name of states. Experience from the different... Even the name of states, it is not going on record. Experience from the different states, including Bengal, Telangana... Again, please, I have to stop. No, sir. I have to stop. No. Otherwise, I will move further. You are not interested in debating. I am not mentioning any names. Again, you are repeating time and on. So, here, I am coming from Kerala, sir, and proudly representing the state of Kerala. There, we have a lot of experience regarding the autonomy of different universities and autonomy of the different institutions. So here, I am mentioning in this Council of States, I think we should discuss the issues regarding the different constitutional measures, our own mechanisms, how we will improve the office of the governor and the functioning of the states. There, in this, in Kerala, the workers and peasants, they fought and forced the king to join the Indian Union. There, thousands of people, they gave their lives for the unity of the nation. In Punapra, Vailar, alone hundreds of workers were martyred for the unity of the nation. So, the successors of kings are receiving awards just for being the successor of kings today. And the voice of the workers are being suppressed by the appointing authority of the governors. So, the great national poet, Vallathol Narayana Menon, Menon has famously sung, Bharadam enna per ketta labhimana puridamakkanam antharangam Keralam ennu kettalu tilakkanam chora namukku nyarembukalil. That means our hearts should swell with the pride when we hear the name of Bharat. Blood should boil in our veins when we hear the name of Keralam. Sir, you know what has happened there? Because of your direction, I am unable Not my direction, it's rules, please. Yes, because please. of I am रूल्स जो माननीय सदस्यों ने तय किया है जो 52 से चला रहा है उस रूल्स के तहत मैं आग्रह करता हूं केरल की भी कोई इंसिडेंट आप बात करेंगे that will not go on record. Sir, you know V. Sudasan ji. Sir, in Kerala, 1959, Kerala had an experience of the dismissal of the elected government. The democratically elected government was dismissed by the union government. Yes, sir. Now you are doing the same thing. Please. You are doing the same thing. Please. At that time, the governor had given an advice for the dismissal of the state government, led by the legendary figure EMS. Sir, governor is the only constitutional authority who takes the oath to protect the interest of the people of the state. I am repeating the word. Governor is the only constitutional authority who takes the oath to protect the interest of the people of the state. Sir, but the role is never performed by the governors, especially I am not going to add the sentence anyway. The governors is not ready to protect the interest of the state is the reality in front of us. It should be discussed, and the parliament should make the mechanism for a proper functioning of the office of the governor. Sir, before the conclusion, I would like to add some other points also. Legal and administrative measures are very much necessary to strengthen the federal structure of our nation. Sir, Article 355 and 356 the Constitution should be amended in order to incorporate safeguard to prevent
the misuse. Sir, the state governments should have a greater role in the administration of the rules and regulations of all India services. If the governor, that means the nominee of the union government, and the persons from the central services are playing the major role in the administration of the state, then federalism will be meaningless. Sir, the pocket veto of the governors is creating various problems in front of the states. Some serious and urgent legislations of the states are kept in the Rajya Bhavans without timely reply or communication. This is serious thing, sir. It should be discussed. The pocket veto, that means the governors, they are making the hurdles for the promotion of the or development of the society. Sir, then how can the state make the legislations if the proper legislation or proper development measures, if necessary, then it should be addressed. The first article of the Constitution clearly says India, that is Bharat, shall be a union of states. The mutual respect between the union government and the state government is very much necessary. The governor is a mere titular head of the state government. A cordial and democratic relationship between the governor and the state government is inevitable. Sir, so the governors should be democratic and should respect and accept the diversity of the nation. The great principle of our nation is unity in diversity. Diversity in culture, diversity in language, diversity in food, dress, diversity is the strength of our nation. Now, the people in the state are not able to consider the governors as part of their society. A huge gap is there. Sir, I am sad to say that corporate loot is continuing with the support of the legislations by the union government. Sir, for continuing this exploitation, they are trying to divide the unity of the people. For this purpose, the office of the governor is being utilized. Sir, I am sure in India, the people will unite for asserting their federal and democratic rights. And the people will create a new India without discriminations. So I am sure we will reach our destination. The people will protect their unity against the policies of Indian ruling class which the governors are promoting. Sir, wherever we are in India, we are able to hear the strongest words against the injustice and discriminations towards the state, towards the people. Sir, that is why I suggest a fixed tenure of the governor. That is why I suggest a fixed tenure of the governor. It is very necessary, and the state assembly should have the right to recall him an extraordinary situation. The governor himself have no constitutional protection now. He can be changed at the mere instruction of the president, that means the instruction of the union government. Sir, there is a need to change this situation. So I request this august House to accept the bill and abolish the existing system of the appointment of the governors. The system should be abolished and new system will be introduced by this august House. Thank you, sir. Thank you. With this Thank word, you. I continue. Manni Dr. V. Sudasan, To seek clarification. where the last Only lake, clarification, sir. last, There is enough time. Only one clarification.
I will take only a few minutes, sir, without casting any aspersion on any government. नो, अब इसके बाद माननीय मंत्री को रिप्लाई भी नहीं करना है, तो क्लेरिफिकेशन की गुंजाइश नहीं बनती दादा, आप जानते हैं। इसके बाद आई हैव टू गो टू द फॉलो द प्रोसीजर, प्लीज प्लीज। इसके बाद हमें सीधे वोटिंग प्रोसेस पे जाना है, हाउस को डिसाइड करना है, प्लीज वोटिंग कीजिए सर, वोटिंग कीजिए सर। कोई इसके बाद माननीय मंत्री एक क्लैरिफिकेशन लेना है। नहीं, क्लेरिफिकेशन आपके बाद अगर मंत्री बोलने वाले होते तो आप जरूर क्लेरिफिकेशन लेते, प्लीज प्लीज। नाउ डॉक्टर वी शिवदासन, आर यू विथड्रॉइंग द बिल और शुड आई पुट द मोशन टू वोट? Vote. I like to वोट। Again, Dr. V. Shivasan, are you withdrawing the bill or should I put the motion to vote? I withdraw the. I will follow the process. Has he leave of the house to withdraw the bill? No. He is moving. I shall now put. Not withdrawing. Are we withdrawing? You are withdrawing? First he told that I am moving. He has withdrawn. Okay. So, Sir, then please. move, sir. The bill is withdrawn. The bill is withdrawn. Has he leave of the house to withdraw the bill? Yes. The bill is withdrawn. अब next कौन सा है? Now we'll move to another discussion. The Constitution Amendment Bill 2020, insertion of new Article 47A. माननीय श्री अनिल देसाई to move a motion for consideration of the Constitution Amendment Bill 2020. Not present. So now we move to another bill, the Salt Lips Collectors and Traders Welfare Bill 2022. The Salt Lips Collectors and Traders Welfare Bill 2022. Dr. Sasmit Patra to move a motion for consideration of the Salt Lips Collectors and Traders Welfare Bill 2022. Sir, I move. Motion moved. आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. Please. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने आज इस अवसर पे मुझे इस बिल पे अपने कुछ वक्तव्य रखने के लिए ये अवसर दिया, इसलिए मैं आपके पास शुक्रगुजार हूं। और आज हालांकि फ्राइडे का प्राइवेट मेंबर्स बिल का समय है और इसके बावजूद भी कई सारे माननीय सांसद आज भी इस सदन में मौजूद हैं इस बिल के समय, इसलिए तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और विशेषकर ये जो द सॉल्ट लीव्स कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर बिल 2022, उड़िया में सर इसको कहा जाता है साड़ो पत्र, साल के पत्ते। और मैं एक बचपन की एक याद से शुरू करना चाहता हूं। बचपन में जब हम लोग किसी भी शादी में या कोई भी फंक्शन में जाते थे, आजकल तो बुफे का जमाना है, आप प्लेट पकड़ के घूमते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, बट तब जो है लंबी कतार से बिठाया जाता था और वो पत्तल जो कहते थे, वो जो साल के पत्ते होते थे वो सामने रखे थे। उड़ीसा में तो होता था, मुझे पता नहीं दूसरे राज्यों में क्या था, बट वो जो साल के पत्ते होते थे वो जो है कई बार रखे जाते थे और कई बार जो है वो चूते थे तो एक पत्तल उसके ऊपर और रख दिया जाता था। तो बचपन की याद ये थी कि उस सौंदेपन में, उस साल के पत्ते के सौंदेपन में, उस गरम गरम चावल और दाल को खाने का मजा ही कुछ अलग था। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे वो साल के पत्ते जो है गुम होते गए, धीरे धीरे वहां पे थर्मोकॉल के प्लास्टिक के प्लेट्स आने लगे
और कुछ देर बाद बुफे का जमाना आ गया और लोग जो है वो प्लास्टिक में, मेलानिन में या शीशों के प्लेटों पे खाना खाने लगे। वो बैठ के जो एक पंगत बोलते थे उड़िया में, वो भी खत्म हो गया। मेरे जहन में आया कि साल के पत्ते, ये साड़ो पत्रो जो हम बोलते हैं, ये साड़ो पत्रो गुम क्यों हो गया? बड़ा अचंभे की बात है। अचानक ये ख्याल मेरे पास तब आया जब कुछ दिन पहले या शायद एक आध साल पहले मैं अमेज़न का एक वो ई स्टोर है उस पे जा रहा था और अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में एक कंपनी जो है साल के पत्तों के प्लेट जो है बेच रही है। तो जो साल के पत्ते जो थे वो मैंने अपने बचपन में जिसके ऊपर मैंने खाना खाया था, आज वो साल के पत्ते जो है इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है और आज न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी कंपनियां उसके प्लेट बना रहे हैं। कहने का उद्देश्य यह है, कई बार हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि कई बार जो है वो प्लास्टिक और स्टील और ग्लास के चक्कर में हम साल के पत्तों को भूल गए हैं। वो पाश्चात्य देश याद रखना शुरू कर चुके हैं, हम थोड़ा थोड़ा भूल गए। इसलिए जरूरी है कि उस साल के पत्तों को याद रखना और कैसे वो साल के पत्ते आज लाए जाते हैं, कौन उन लोगों को साल के पत्तों को आज भी समाता है, रखता है और हो क्या रहा है। मान्यवर, मुझे मौका मिला उड़ीसा के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में कई बार दौरे करने के लिए और कई ऐसे इलाकों में जाने के लिए जहां कोई साल के पत्ते आज भी मिलते हैं, आज भी उनको कलेक्ट किया जाता है, आज भी उनको रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी लगभग 2.5 करोड़ आदिवासी भाई बहन हमारे हैं इस देश में। 2.5 करोड़ की आबादी है लगभग, और लगभग उनमें कई ऐसे हैं जो पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। और ऐसे पीवीटीजी ग्रुप्स में के कई लोग हैं जो आज भी उस साल के पत्तों से अपनी जीविका निर्वाह करती है। तो तब एक सोच आई कि क्या हम ये जो साल के पत्ते जो लोग कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं और उसके बाद उनके साथ जो ट्रेडिंग करके उनको आगे ले जाते हैं, क्या उनके प्रोत्साहन में हम कुछ ना करें? मैं ये नहीं कहता कि सरकार उनके प्रोत्साहन में कुछ नहीं कह रही, और ये बिल की सोच ये नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक वाद विवाद खड़ा किया जाए। ना ही इस बिल की कोई सोच है या मानसिकता है कि केंद्र और राज्य की मैं कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करूं। नहीं, बात यह है कि आज जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, आज जब हम इको फ्रेंडली की बात करते हैं, तो आज हमें फिर से साल के पत्तों को याद करना पड़ेगा। बिकॉज इफ एनीथिंग इज ऑर्गेनिक, एनीथिंग इज इको फ्रेंडली, इट इज साल के पत्ते। इतने सारे त्योहार होते हैं, आप कहीं भी पिकनिक पे चले जाइए मान्यवर, वहां पे आपके प्लास्टिक के पत्ते जो है पहाड़ों से लेके बड़े बड़े जंगलों से लेके हर जगह से विस्तृत पड़े रहेंगे। हजारों सालों तक वो प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होगा, वो वहीं पे बैठा रहेगा। मगर साल के पत्तों पे जब हम लोग खाते थे, उसको छोड़ दीजिए, 2-3 महीने में वो फिर वो मिट्टी में मिल जाती थी, फिर वो साल के पत्ते आते थे। ये ऑर्गेनिक है। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा कि साल के पत्तों के माध्यम से कैसे हम फिर ये सस्टेनेबिलिटी का दौर वापस लाएं, ऑर्गेनिक लिविंग का दौर वापस लाएं। और विशेषकर 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी में कई सारे राज्यों में, चाहे वो उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कई सारे राज्यों में जो साल के पत्तों को कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, उनकी जीवन जीविकाओं को और बेहतर करें। मान्यवर, ये साल के पत्ते, मैं थोड़ा बहुत साल के पत्तों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद फिर बिल के अंदर जाऊंगा। और क्यों जरूरत पड़ी गई इस बिल की, क्यों मुझे महसूस हुआ यह बिल की आवश्यकता है। साल के पत्तों के कलेक्शंस जो होते हैं वो एक साल के दरमियान 2 बार किए जाते हैं। एक होता है नवंबर से मार्च, एक होता है जून जुलाई। और फिर जो है इन पत्तों को जो है आगे ट्रेडर्स ले जाते हैं, इन पर आपके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मगर खासकर ये जो जून जुलाई का समय होता है मान्यवर, इसमें जब साल के पत्ते आते हैं, उनको रख दिया जाता है, तो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे वो साल के पत्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा,
सीजनल रेनफॉल होता है, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से साल के पत्ते खराब हो जाते हैं, लोगों को जाने में तकलीफ होती है, कीड़े लग जाते हैं, लोग कई बार लाके अपने घरों में रखते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसमें खराब हो जाते हैं, कई बार जंगलों में आग लगती है, उसमें खराब हो जाते हैं। तो जो लोग अपनी जीवन जीविकाएं जो है साल के पत्तों पे निर्भरशील हैं, उनकी जीवन और जीविकाएं को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। माननीय, साल के पत्तों को कैसे एक अगर दिनचर्या सोचा जाए कि हमारे राष्ट्र के एक आदिवासी मां सवेरे उठती है और उसके बाद कई बार, चाहे वो चप्पल पहन के हो, नंगे पांव हो, वो जाती है जंगल के अंदर और सवेरे से शाम तक जो है लगभग 1000 से 1200 साल के पत्ते वो संग्रह करके घर लाती है। वो 1000 से 1200 साल के पत्ते जो वो संग्रह करती है, उसके पूरे दिन भर में जब वो घूमती रहती है, कई बार पीठ में दर्द हो जाता है, कई बार कीड़े कहीं पे काट लेते हैं, कहीं पर कुछ चुभ जाता है, सांप का डर रहता है, कई परेशानियां रहती हैं। तो इसलिए जब इस तरह की एक परिस्थिति में सवेरे से शाम तक जो है एक हमारी आदिवासी भाई या आदिवासी मां जाती है, तो उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो वापस लाते हैं, साल के पत्तों को रखते हैं अपने घरों में। मैं कई बार दौरा करता हूं, मैं देखता हूं कि घर में लोगों को रहने के लिए जगह कम है, मगर वो साल के पत्ते रखे हुए हैं ढेर सारी जगहों पे। मैं बोला क्यों? बोले ये हमारे लिए सोना है, कभी जरूरत पड़ गई इसको बेच लेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं से दुविधा दूर हो जाएगी, इसलिए हम साल के पत्तों को लाके रखते हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी इसको हम खर्चते हैं, ये हमारे लिए घर का सोना है। कहने का उद्देश्य है मान्यवर, इन साल के पत्तों के माध्यम से कई सारी जो उनकी जिंदगी और उनका जो दिनचर्या चल रहा है और उनकी जीविका आगे बढ़ रही है, उनकी जिंदगियों को और उनकी जीविकाओं को हम और कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगियों को और बेहतर कर सकते हैं। ये जो करीब 2.5 करोड़ हमारे आदिवासी भाई बहन हैं और उनमें से कई सारे हैं, जैसे उड़ीसा से मैं आता हूं, उड़ीसा जो है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज के लिए जाना जाता है। पीवीटीजीज क्या है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो ट्राइबल ग्रुप्स जिनकी संख्या काफी हद तक घट रही है और जिसकी वजह से उनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में रखा गया। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार के लिए, हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए, वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, कई काम किए हैं सरकार ने। अभी माननीय आपके महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी, हमारी उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में पीवीटीजीज के बारे में कहा। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा और काम करने की आवश्यकता है, मगर साल के पत्तों को लेके हमें विशेषकर एक स्पेसिफिक मुहिम छेड़नी पड़ेगी और इसलिए जो है यह बिल में लेके आया हूं। मान्यवर, मैं बड़ा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे माननीय सांसद इस पर ज्यादा बोलें। मैं बस बिल के कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पे जाके मैंने अपना वक्तव्य रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा और 5-7 मिनट लूंगा। ये बिल क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है ये बिल, और मैं डायरेक्टली सेक्शन 3 पे आता हूं इस बिल का। सेक्शन 3 कहता है, the central government shall by notification in the official gazette set up a fund to be known as the Sal Leaves Collectors and Traders Welfare Fund। एक फंड की गठन हो। इस फंड से क्या फायदा होगा? इस फंड से कई सारे विषयों को किया जा सकता है, जैसे कि वो सेक्शन 5 में लिखा गया है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 1, पहला विषय क्या होगा उस फंड से, और उस फंड के विषय पर मैं जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं फंड की कितनी राशि होनी चाहिए। शुरुआत में फाइनेंशियल मेमोरेंडम में इस बिल के मैंने राशि रखी है, इनिशियली 300 करोड़ 300 करोड़ का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना चाहिए और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसके लिए 200 करोड़ एलोकेशन रहना चाहिए। उसका भी वर्णन है, जब रिप्लाई आएगा मैं उस पर बोलूंगा। और इसके साथ ये नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार पे सारा जिम्मा है, क्योंकि राज्यों में ज्यादातर काम होता है, तो केंद्र सरकारें और राज्य सरकार दोनों मिलके एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट से, एक सर्टेन शेयरिंग पैटर्न से जो है इस फंड पे अपने एलोकेशंस करें, इस फंड पे अपने आर्थिक सहयोग दे, जिससे कि यह फंड और मजबूत हो। ये शुरुआत के लिए है 300 करोड़, बट ये पर्याप्त नहीं है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं फिर आता हूं सेक्शन 5 पे कि इस फंड के माध्यम से फायदा क्या होगा। पहला फायदा यह होगा
कि इस फंड के माध्यम से पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन एट अ रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ after the SAL leave collectors or traders have attained the age of 60 and incapable of performing the job on account of physical illness, infirmity or incapacity. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ये लोग जंगलों में भटक के जब साल के पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं, 60 साल हो जाता है या फिर कोई और परेशानी आ जाती है और ये अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर सकते या सक्षम नहीं है उस चीज को करने के लिए, क्या उनको भूल जाए हम? क्या छोड़ दे अपने हाल पे? मान्यवर, इसीलिए एक पेंशन के गठन करने की आवश्यकता है, 5,000 रुपए पर मंथ का पेंशन रहे। दूसरा, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द साल लीव कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स and their dependent family members at the designated government and other hospitals. जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो चिकित्सा है, उसको उनको मुहैया कराने की आवश्यकता पड़ती है ज्यादातर, क्योंकि 99% क्या 100% लोग जो है जंगलों में जाके ही ये सब कलेक्ट करके लाते हैं। और जब कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल अपने जिंदगी में ये साल के पत्ते संग्रह किया होगा, उनके जो फिजिकल स्टेट है, उनका जो शरीर है, उसके ऊपर कितनी मात्रा पे हार्डशिप्स आई होंगी। इसलिए हेल्थ केयर की आवश्यकता पड़ती है एंड देयर इज अ नीड फॉर फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नंबर 3, फ्री इंश्योरेंस कवर टू साल लीव कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ अघटन घट जाता है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। और चौथा, फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर साल लीव कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इसको मॉनिटर करने के लिए, इस तमाम चीज को, फंड को ऑपरेट करने के लिए आवश्यकता है एक साल लीव्स कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो फंड है, ये साल लीव्स कलेक्टर्स ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से कार्यरत किया जाएगा इन कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसमें कौन रहेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक चेयरपर्सन रहेंगे। हर राज्य से जहां पर कि ये साल लीव कलेक्शन होता है और ये बहुत बड़ा मेजर ऑक्यूपेशन है, वहां से एक राज्य के एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो कि साल लीव कलेक्टर्स और साल लीव ट्रेडर्स हैं, जो कि नॉमिनेट हो सकते हैं इन अ वे प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। और इनके सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी प्रोवाइडेड एज पर द रूल्स फ्रेमिंग गोइंग फॉरवर्ड। इसको विधेयक में लाने की फिलहाल अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अहम विषय इस बिल में है अब मिनिमम वेज। कई बार क्या होता है कि किसी दुविधा के कारण, जो मैंने आपको बताया, कई बार जंगल में आग लग जाती है, कई महीनों तक लोग जा नहीं पाते, कई बार बारिश होती है, लोग जा नहीं पाते, कई बार कोई और समस्या आती है, तो अगर वो आज जाके अपना काम नहीं किए तो आज उनको भूखे रहना पड़ता है। भूखे रहना पड़ता, नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ कि दाल चावल की आवश्यकता, ये PMGKY है, दूसरी चीजें हैं, मैं बिल्कुल समझता हूं, बट उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा जाती है। तो इसलिए आवश्यकता है, सेक्शन 6 में मैंने दिया है, कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स टू बी अश्योर्ड मिनिमम वेज। वो जितना कलेक्ट कर सके नहीं कर सके, उनको एक मिनिमम वेज दीजिए, जो कि वो अपनी जो स्थिति है, उनका जो सर्वाइवल का जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, उस पर वो हमेशा चिंतित ना रहे, परेशान ना रहे। उसके लिए एवरी साल लीव कलेक्टर एंड ट्रेडर शुड बी एंटाइटल्ड टू एन अश्योर्ड मिनिमम वेज as may be fixed by the appropriate government, irrespective of the number of leaves collected or traded by them. उसके ऊपर रूल्स आप फ्रेम कर सकते हैं, मिनिमम नंबर्स भी अगर आप चाहे रख सकते हैं। आप बोलेंगे अगर कल कोई आके रजिस्टर्ड हो जाता है और वो कोई काम नहीं करता, क्या उसको भी हमें पेमेंट करना चाहिए? मैं उस पर नहीं कहना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नाम लिखवा के फिर वो घर पे सो जाए, ऐसा भी नहीं है। आप रूल्स फ्रेम करिए, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखिए उसके लिए, मगर एक मिनिमम वेज फिक्स करिए, ताकि कल अगर किसी कारणवश वो अपना इनकम 1 महीने 2 महीने के लिए रुक जाता है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है घर की, वो चरमरा ना जाए। मान्यवर, मैंने प्रॉमिस किया था मैं बड़ा लंबा नहीं बोलूंगा, मैंने लगभग 16 मिनट बोला है, मगर मैं एक चीज गुजारिश ये करूंगा कि आज कई विषयों में और कई पैमानों में साल लीव के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश भर में या राज्यों में नहीं हो रहा है। उड़ीसा राज्य में
अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में कई बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं वहां पर। इनफैक्ट साल लीव और साल प्रोटेक्शन के लिए वहां पर अगर आप देखें तो उड़ीसा में अभी the Honorable Chief Minister has taken various measures to uplift the livelihood of sal leaf collectors and traders, starting from providing financial assistance for creating infrastructure for the storage of collected sal leaves and the production of leaf plates and other products, to waiving of royalty on sal leaves. इस तरह से कई ऐसे काम केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे एक बोर्ड और एक फंड की आवश्यकता है जो सेंट्रली उसको मॉनिटर करे। क्योंकि अगर ये इकोनॉमी जो है एक ऑर्गेनिक इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी जो है एक ट्राइबल इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी जो है एक फॉरेस्ट इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी जो है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट का है, क्योंकि ज्यादातर कलेक्टर्स 90% जो होती है हमारा आदिवासी बहनें होती हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सांसदगण अपने अपने वक्तव्य रखें, और मैं चाहता हूं कि हम राजनीति से ऊपर उठ के इसको सोचें, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें सिर्फ विकास की सोच है, ये सिर्फ लोगों की भलाई की सोच है। यहां पर कोई तू मैं का नहीं है, यहां पर यह है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के विकास और विशेषकर साल पत्र को कलेक्ट करके उसको ट्रेड आगे करने वाले लोगों के विकास के बारे में है। तो मैं आशा करता हूं हर एक सदस्य जो बोले वो इसी मंशा के साथ बोले कि अगर आज उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी एक स्तर पे है, वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी और कितनी ऊपर जा सके। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्रीगण को धन्यवाद देता हूं, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सस्मित जी। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, साल पत्ता एकत्र करने वाले और इसके कामकाज में लगे लोगों के कल्याण के लिए यह बिल है। अभी तक किसी वक्ता का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को ही अब जवाब देना पड़ेगा। साल पत्तों के बारे में माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह बताएंगे, वो उस इलाके से आते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज माननीय सदस्य संबित पात्रा जी ने जो साल लीव्स कलेक्टर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर बिल 2022 मूव किया है, उसकी इंटेंशन अच्छी है। चाहते हैं कि देश भर में जो जनजाति इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको कैसे और अधिक बेहतर लाभ पहुंचाई जाए। मैं इसके इन भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन उपसभापति महोदय, सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है देश के विकास के लिए, और देश के विकास के पहले पंक्ति पर आज़ादी के लंबे कालखंड में आगे की ओर कैसे बैठे, आगे की ओर कैसे बढ़े और आगे की ओर कैसे दिखाई दे, उनके जीवन में व्यापक सुधार कैसे हो, उनके भविष्य को हम बेहतर कैसे बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक रूप से जिन बातों की आकांक्षा रखते हुए देश के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज ने हमेशा उन चीज़ों का प्रतिवाद करते हुए जिससे उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे हित में नहीं है, और वो विभिन्न कालखंडों में, चाहे वो ब्रिटिश रूल में हो या उसके पहले के शासन कालों के दौर में हो,
इस बात से हम सब इस समय निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर से कहा कि हमारे देश की मिट्टी की सुगंध को बरकरार रखने के लिए जिन लोगों ने आहुति दी है, उन लोगों के लिए जो अनसन हीरोज हैं, उनकी खोज, उस पर शोध, वैसे लोगों को सामने ला करके हमें देश को बताना चाहिए कि जो आज दिख रहे हैं वो तो वास्तविक रूप से ठीक है, उनके इतिहास लिखे गए हैं, संघर्षों में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन जिनकी बातों को लिखा नहीं गया, जो कुछ पंक्तियों में या कथाओं में सीमित रह गए, क्योंकि जहाँ से घटना घटी वहाँ के लोग तो हमेशा स्मरण रखते हैं, लेकिन इतिहास के आईने में वो प्रतिबिंब नहीं हुआ। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में कहा कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमें ऐसे संग्रहालयों की, म्यूजियम की स्थापना करना चाहिए जिससे व्यापक रूप से उन लोगों को प्रतिबिंब किया जा सके, दिखाया जा सके जो वास्तविक रूप से अपने स्थान में रहकर लोगों ने संघर्ष के बल पर उस मिट्टी की महक को बरकरार रखने का भूमिका अदा किया। और इसलिए 10 से अधिक संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हुए वो कार्य प्रारंभ हुआ। कई स्थानों पर संग्रहालय का उद्घाटन हुआ और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, जो जनजाति समाज से आए, उनका सम्मान देने का कार्य हुआ। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समाज के स्वाभिमान को यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो वो समाज भी और वो राष्ट्र भी कभी प्रगति नहीं करता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से कहानी शुरू की कि हमें वैसे लोगों का सम्मान का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाने का कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और इसके बाद इस देश में एक प्रबंधन की, एक व्यवस्था की, एक शासन की, कि जिससे हमारी शासन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, और इस बात को वास्तविक रूप में चिन्हित करते हुए कहा कि वैसे जिलों का, वैसे क्षेत्रों का, वैसे सुदूरवर्ती गांवों का विशेष तौर से आकलन करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आधारभूत संरचना में कमी है, जिन चीज़ों की कमी है, उसे आकांक्षी जिला के रूप में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में प्रतिस्पर्धा के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़े। यह कार्य और इसकी गुणवत्ता एक गवर्नेंस का नया मॉडल बने। उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी छोटी यूनिट ब्लॉक को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी प्रखंड के रूप में, 500 आकांक्षी प्रखंड के रूप में यह सुनिश्चित किया कि उसमें प्रतिस्पर्धा हो, कि उससे हम यह सुनिश्चित करें कि एक छोटी इकाई कैसे गांव में सहजता के साथ विकास के कार्यों को जनता को केंद्र में रख करके, वैसे लोगों को केंद्र में रख करके करे जो वास्तविक रूप से एस्पिरेशनल है, आकांक्षी। ये कार्य प्रारंभ हुआ और इसलिए इसके साथ साथ ही जब यह कार्य प्रारंभ हुआ, एक नया मॉडल हमारे सामने पुनः इसके बाद आई कि देश भर में जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने की है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के मामले में, क्योंकि पीवीटीजी क्या होते थे, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, वो अपने आजीविका के लिए वनोपज के साथ ऐसे जो उसके सामने संसाधन है उसका उपयोग करते हुए, लेकिन आधारभूत संरचना के दृष्टि से वो हमेशा उपेक्षित रहते थे। इसलिए उपेक्षित रहते थे, एक तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में, दुरूह क्षेत्र में उनकी जीवन पद्धति अपने आप में इकोलॉजिकल है, पर
पिछड़ा है, डिमांडिंग नहीं है। और इस वजह से किसी भी ऐसे मापदंड में, जैसे कोई भी सड़क कार्य का निर्माण होता है, कोई भी आधारभूत संरचना होती है, तो उसमें यह कहा जाता है कि इतनी आबादी होगी तो यह सुविधा प्राप्त होगा, इतनी जनसंख्या होगी तो यह गांव टेकअप होगा कि ये इस योजना के तहत यहाँ की ये सड़क बन सकेगी। तो ऐसे बहुत सारे योजनाओं का आप देखेंगे कि एक मापदंड तय गया है, इतनी संख्या में सब सेंटर बनेगा, इतने में हेल्थ सेंटर बनेगा, इतने में आंगनबाड़ी बनेगा, और ये सारी चीज़ों में पीछे हो जाते थे क्योंकि इसके लिए आबादी का मापदंड सही नहीं हो पाता था, क्योंकि वो जहाँ पर है वो कहीं 10 घर है, कहीं 5 घर है, कहीं 8 घर है, और उसकी आबादी बहुत सीमित है। तो देश के 75 साल तक इन मापदंडों के कारण वो सारे लोग विकास के उन चीज़ों से अछूते रहे जिन्हें बहुत ज़रूरत थी, सबसे पहले ज़रूरत थी, सबसे अधिक ज़रूरत थी। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि खूंटी से संकल्प लेते हुए उन्होंने इस योजना का नाम ही लिया जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन के रूप में देश भर के 75 ऐसे समूहों के लिए योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के तहत लगातार मॉनिटरिंग का कार्य कई मंत्रालयों के साथ मिलकर के जनजातीय मंत्रालय कार्य कर रहा है पीएम जनमन के माध्यम से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख आवास की योजना उन लोगों के लिए स्पेशली उनके कार्य प्रारंभ हो जाए यह सुनिश्चित किया। सड़कों का 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसी तरीके से जहां विद्युतीकरण नहीं, दूर क्षेत्र में कई बार बहुत तरह के अड़चने इस तरह की आती है कि उन गांवों तक, क्योंकि वो तो छोटे छोटे झोपड़ी टोले इस तरीके से रहते, वहाँ तक जाने के लिए कई तरह बिजली जाने के लिए अड़चन है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कई किलोमीटर दूर पोल गाड़ते हुए वहाँ तक बिजली पहुँचाना है। वहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे गांव में, ऐसे टोले, ऐसे मोहल्ले में बिजली पहुंचाने के लिए उन औपचारिकताओं को जिससे ये पहुंचाने में अड़चन होती है उसको शिथिल करते हुए भी हमें यह कार्य को पूरा करना है कि उसके घर में भी बिजली जलना चाहिए, यह सुनिश्चित करने का काम किया। इसके साथ साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जिस साल पत्र के मामले में कह रहे हैं, यह साल पत्र वास्तविक रूप से न केवल जनजाति बल्कि सब में ग्रामीण क्षेत्रों में एक पवित्रता का प्रतीक है। पर्यावरण के दृष्टि से, इकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो अपने स्थान पर है पवित्रता के दृष्टि से। इसलिए संस्कृत स्लोगन में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, अयः पत्रे पयः पानम साल पत्रे भोजनम झारखंडी विधीयते, क्योंकि यह परंपरागत ढंग से मान्यता के साथ इसको किया जाता है। और इसीलिए भारत सरकार का यह मंत्रालय एफआरए के माध्यम से, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के माध्यम से उन सारे गांवों में एक तरफ स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चला रहा है, उसके साथ साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से यह भी एक आजीविका का साधन है, उसका रोजगार बेहतर ढंग से हो, उसके जीवन की सुरक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा भी ऐसे 85 से अधिक वनोपज है जिस पर हम एमएसपी ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। ऐसे बहुत सारे उपज हैं जो बाजारों में उसकी बहुत अधिक कीमत भी है, पर वहाँ उन्हें कीमत नहीं मिलती है, इसलिए उसमें
एमएसपी तय करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया कि वनोपज हमारा ट्राइफेड के माध्यम से क्रय करेगा। यदि उससे अधिक कीमत की बाजार में मांग होगी तो वो वहाँ भी बेच सकता है, लेकिन मिनिमम प्राइस उन्हें इस रूप में मिलना चाहिए ताकि उनके जो मेहनत है, उनकी जो संपदा है, क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के माध्यम से पूरे गांव को यह अधिकार देता है कि वनोपज का पूरा संसाधनों का उपयोग वो अपने जीवन के लिए, अपने गांव के लिए, अपने और अपनों के लिए कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। और इसी तरीके से लगातार बंधन केंद्र का कॉन्सेप्ट लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रबंधन का एक व्यवस्था कायम किया और लगातार उसमें स्वयं सहायता समूह, उसमें ऐसे स्वयं सहायता संगठन और जो स्वयंसेवी संगठन है, सबके साथ मिलकर के इस तरह का कार्य हो रहा है। माननीय सदस्य की भावना बहुत अच्छी है, पर इन कार्यों को हम और कैसे गति दें, हम लगातार उस पर जोर दे रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए और पीएम जनमन उसका उदाहरण है। और इस तरह के योजनाओं के साथ हमने और बेहतर क्या हो सकता है, हम जरूर उनके सुझाव लेंगे, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्ट शायद बनाना उतना संभव और सही ढंग से केंद्रित करके नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 80 से अधिक उपज जिसका एमएसपी हमने तय किया है। मैं माननीय सदस्य के साथ बैठूंगा बेहतर तरीके से कि और बेहतर कैसे हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जो जंगलों के बीच में दुरूह क्षेत्र में, उसके विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनके प्रगति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, जिसके बल पर हम यह कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं कहूँगा कि आप इस जो आपने मूव किया इसको वापस लीजिए, हम बैठ करके और बेहतर क्या हो सकता है हम मिल करके सोचेंगे, क्योंकि हम सभी जिम्मेदार हैं, वैसे तबके, वैसे लोगों, वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहनों के बारे में कि हम कैसे उनके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सुस्मित पात्रा जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपना रिप्लाई रखूंगा। और पहले मैं माननीय वाइस चेयरपर्सन मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका पहला दिन है आज पैनल में, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे आज प्राइवेट मेंबर्स बिल में रिप्लाई आपके चेयरिंग के समय मिल रहा है। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री, हमारे बड़े भाई, हमारे पड़ोसी झारखंड से श्री अर्जुन मुंडा जी का, क्योंकि अर्जुन जी की जो स्नेह है वो चाहे उड़ीसा के लिए हो, चाहे झारखंड के लिए हो, चाहे भारत के सारे राज्यों के लिए है, वो बहुत ही स्पेशल है। और जाहिर सी बात है उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से ट्राइबल अफेयर्स को उन्होंने आगे लिया है, ये एक बहुत ही सराहनीय विषय है। और मेरे संक्षिप्त रिप्लाई में मैं 2-3 बिंदुओं को टच करते हुए मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। पहला विषय माननीय मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से रखा कि, और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। वो हमेशा विषयों को गंभीरता से लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही लिया है, वो हमेशा उस गंभीरता से काम करते हैं। वो एक आदिवासी बेटे हैं, एक आदिवासी भाई हैं, और इसलिए वो जानते हैं कि आदिवासी भाई बहनों की जिंदगियों में किस तरह की जटिलताएं आती हैं और किस तरह से उन जटिलताओं को हम दूर करते हुए आगे निकल सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया था स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट के बारे में। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और 1-2 छोटे-छोटे मेरे रिक्वेस्ट रहेंगे कि उड़ीसा राज्य में, क्योंकि मैं उस राज्य से आता हूं, उस राज्य का बेटा हूं, और क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी मेरे राज्य से आती है, हालांकि वो पूरे राष्ट्र की बेटी है।
मगर मैं थोड़ा सा उनसे ये गुजारिश कर सकता हूं कि स्किल डेवलपमेंट में विशेषकर साल लीव्स को लेके जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स और खोले जा सके और इससे जो साल लीव के जो कलेक्टर्स हैं उनको वैल्यू एडिशन करने का और मौका मिले, ताकि एक कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्होंने उसको संग्रह किया और उसी कोऑपरेटिव के माध्यम से, उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने उसकी वैल्यू एडिशन करी, तो उनकी जो आमदनी है वो कई गुना और बढ़ सकती है एज फार एज ओनली साल पत्र सिर्फ कलेक्ट करके देना। दूसरा विषय है कम्युनिटी राइट्स एक्ट। ये बहुत अहम विषय है मान्यवर, और मैं इस वक्त मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद दूंगा कि उड़ीसा एकमात्र राज्य है जिसने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स में पट्टे जो होते हैं, लैंड राइट्स होते हैं, दिए गए हैं। लगभग 4 लाख से ज्यादा दिए गए हैं और इसमें माननीय मंत्री जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो इसलिए फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से किस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए और जो इंडिजिनस वहां पे फॉरेस्ट में रहते हैं लोग हैं, उनके लिए जीवन और जीविका के लिए इसको और हम तेजी से आगे ले जा सकते हैं। तीसरा विषय एमएसपी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बोला, एक बहुत ही अहम विषय है। इस पर मैं अभी बोलना चाहूंगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने एक नया योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है लाभव, LABHA, लाभव। उसके डिटेल्स में अभी समय नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, बट उसमें यह है कि एमएसपी को हर 100 करोड़ का एक फंड अभी एलोकेशन किया गया है। किस तरह से हम बेसिकली टैमरिंड जो इमली होती है और उसके साथ ये साड़ा पत्र होता है और दूसरी चीजें होती है, उनके लिए कैसे हम एमएसपी निर्धारित कर सकते हैं अपनी तरफ से और उसको और आगे ले जा सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और लाभो योजना के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा माननीय मंत्री जी से, और हम कोशिश करेंगे किस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक मुहिम में लेके जा सके। आखिर में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हर माइनर प्रोड्यूस, हर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए अगर हम लॉ लाएं, हो सकता है ढेर सारे कानून बन जाएंगे और हर एक कानून की व्यवस्था को फिर लेते हुए हो सकता है मुश्किलातें और भी बढ़ सकती हैं। मैं उनकी बात से एकमत हूं, उनके बात से सहमत हूं, और उन्होंने जो अश्योरेंस दिया है कि इसको आगे ले जाने में वो पूरे तत्परता के साथ करेंगे, इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में साल पत्र को लेते, जो कि उड़िया में हम लोग साड़ा पत्र बोलते हैं, उसकी जो जीविका जिससे जुड़ी हुई है, लोगों की जिंदगियां और बेहतर होंगी। और विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहन, करीब 2.5 करोड़ आदिवासी भाई बहन जो इसके ऊपर अपनी जीविका को निर्भर करते हैं, उनकी जिंदगियां और बेहतर होंगी। और इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। भले ही पार्टिसिपेशन ना रहा हो, आपने फ्राइडे इवनिंग में इतनी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रह के एटलीस्ट इस बिल को हम आगे ले जा सके, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, आप बिल विथड्रॉ करेंगे या? संतुष्ट हूं माननीय मंत्री जी के अश्योरेंस से, मैं बिल विथड्रॉ कर रहा हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स, हैज ही लीव ऑफ द हाउस टू विथड्रॉ द बिल? थैंक यू। द बिल इज विथड्रॉन। Now we move to next bill, the Mental Health Care Amendment Bill 2023. The Mental Health Care Amendment Bill 2023. The bill was listed for consideration subject to receiving of President's recommendation under Article 1173 of the Constitution. The recommendation of the Honorable President for consideration of the bill has since been received. Shri Surendra Singh Nagar to move a motion for consideration of the Mental Health Care Amendment Bill 2023. Shri Surendra Singh Nagar? Not present. So we move to now another bill. The Guaranteed Delivery of Public Services and Accountability Bill 2022. Subject to receiving the President's recommendation has not been received, hence the bill cannot be taken up for consideration. We are waiting for Honorable President's recommendation. Thank you. We move to now other bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of Article 16. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of Article 16. Shri Javed Ali Khan
to move a motion for consideration of the Constitution Amendment Bill 2022. Shri Javed Ali Khan, not present. So now we move to a special mentions. Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar, demand to start direct train between Mumbai and Ambala Andura Unna. Andura Unna. धन्यवाद सर। आप अप्रूव टेक्स्ट ही पढ़ेंगे। जी धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से मुंबई से अम्ब इंदौरा उन्ना तक सीधी ट्रेन शुरू करने की मांग के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई से अम्ब इंदौरा उन्ना के लिए सीधी ट्रेन न होने के कारण कई यात्रियों को चंडीगढ़ उतरना पड़ता है और 25 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इंटरस्टेट बस स्टैंड चंडीगढ़ पर बच्चों, महिलाओं और सामान के साथ जाना और आगे की हिमाचल के लिए 9 घंटे बस की यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती हैं। मुंबई से अम्ब इंदौरा उन्ना के लिए सीधी ट्रेन चलने से मुंबई, सूरत, बड़ौदा, रतलाम, इंदौर, कोटा, मथुरा, नई दिल्ली, हरियाणा इत्यादि विभिन्न स्थानों से हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सीधी ट्रेन शुरू होने से टूरिज्म, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तथा बहुत से क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। अतः मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मुंबई से अम्ब इंदौरा उन्ना तक सीधी ट्रेन शुरू करने की अनुमति देने की मांग पर विचार करें, ताकि मुंबई से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ हो, मुंडारी, भूमिज, कुई एंड सरोवा लैंग्वेजेज इन द 8th schedule of the Indian Constitution. Thank you, Deputy Chairman, sir. The topic for my special mention is demand for inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Sora languages in the 8th schedule of the Indian Constitution. Language is extremely important as an ethnic identity, and with a scheduled tribe population of over 22.85%, Odisha is home to 62 tribal communities, including 13 particularly vulnerable tribal groups. Inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Sora languages will go a long way in fulfilling the long-standing demands and aspirations of the tribal communities speaking these 5 languages. Government of Odisha has written in this regard to the Honorable Union Home Minister for earlier and requested the inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the 8th schedule to the Constitution. Inclusion of Kui and Sora languages have been reiterated through unanimous resolutions from the Odisha State Cabinet. Recently, the Odisha State Cabinet has again reiterated through unanimous cabinet resolution to include the tribal languages in the 8th schedule to the Indian Constitution. The Odisha government has initiated several steps for giving recognition to the tribal languages. The special development councils across 23 districts in Odisha have tremendously helped the protection, preservation, and conservation of tribal culture and heritage. However, there are some tribal languages in Odisha which highly deserve to be included in the 8th schedule of the Constitution. I strongly demand that the Union government should take necessary steps for including Ho, Mundari, Bhumij, Kui, and Sora languages in 8th schedule to the Indian Constitution. Thank you. Thank you. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, not present. Honorable Sri R. Girirajan, demand to expedite Chennai Metro Rail Phase 2 project and release of matching funds. Mr. Chairman, sir. Demand to expedite Chennai Metro Rail Phase 2 project and release of matching funds. The Chennai Metro Rail Phase 2 project is an important transport infrastructure initiative to facilitate the public transport in Greater Chennai region. It is envisaged to build 3 corridors for a length of
118.9 kilometers and 128 stations to ease the traffic and to cater the needs of the large population. The Union government has permitted the government of Tamil Nadu to proceed with the rupees 61,843 crore Chennai Metro Rail Phase 2 project in Chennai 2 years ago. The government of Tamil Nadu has been funding the project, expecting that the centre would approve it soon. The Union government is yet to allocate funds since the approval for the Cabinet Committee on Economic Affairs is pending. The Tamil Nadu government has allotted rupees 10,000 crores for the said project in this year state budget. The Japan International Corporation Agency has offered loan assistance rupees 20,196 crore for building 52.01 kilometer phase 2, and the Asia Development Bank has approved in the principle for funding of the remaining 66.89 kilometer stretch. The government of Tamil Nadu is steadfast and on the target of executing the project. The centre should release the matching funds and the loan assistance for bilateral, multilateral agencies should also be released on time. I urge the Union government to take necessary steps to expedite the approval by the CCEA and release the matching funds from Government of India and also the loan assistance from JACA and ADB on time. Thank you, sir. Thank you. Manishri Lahar Singh Siroya, steps needed to nurture artisans and sculptors to preserve Bharat's sculpting legacy. Not present. Manishri Anil Prasad Hegde ji, concern over WHO proposed global pandemic treaty with the amendments to the International Health Regulation 2005. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on an important subject with the concerns over WHO's proposed global pandemic treaty with the amendments to the International Health Regulations 2005. The World Health Organization's global pandemic treaty with the amendments to the International Health Regulations 2005 presents a profound threat to our national interest. European and UK Parliament have also raised concern regarding them. WHO's proposed treaty hopes to become the ultimate authority on health in a One Health approach which would grant unchecked powers to the organization that extend far beyond the realm of health, encroaching upon areas of food economy, environment, and individual liberties. Its provisions enable the WHO to unilaterally declare pandemics, assume control over national governments, mandate medical procedures, and impose restrictions that violate citizens' constitutional rights. The amendments to the IHR 2005 deepens our concerns. They could lead to draconian measures undermining our national interests if accepted. It is important to note that WHO, an external and unelected body funded by private interests and companies, will take over policy making in the health sector, and the achievements of our government will come to a naught while putting the health of our citizens at risk. It is important that such far-reaching decisions concerning the health and liberties of our people undergo a rigorous process of parliamentary scrutiny and approval. Therefore, I urge the government to ensure that no treaty, especially the pandemic